the second chapter of the English channel book. Okay. So, first tell me, do you like the stories your grandmother or any elderly person told you? Right? Okay. Now, we just read another story which is told by the grandmother of a child. Okay. So, shall we start? Let's get started. Elephant feast. The children snuggled to come close up to Grandma. It was story time, Grandma. And you had many interesting stories to share with us. Tell us one of your favorite stories, Grandma, said Seher. Yes, said Shadat. Tell us one about a tiger. No, tell us one about your elephant stories, like one about the newborn elephant calf that made you fall, or the one about the wild elephant that rubbed its back against your house and you thought it was an earthquake. Where you were very frightened, Grandma. Oh, yes, I was. Well, I'll tell you an elephant story that will show you up how intelligent these animals are, and they are also very organized and caring creatures. Long ago, when your grandpa was a forest officer, he was sent to Bingdubi. It was forest outpost near the Siliguri. At the foothills of Himalayas, that area is known as Duars, which means doors to mountains. He was sent there to check on what the people living there call the elephant menace. Wild elephants were wandering into rice fields and eating up the crops at night. The night guard tried to scare off the hungry beast, but the elephants were not so easily frightened. Your grandpa went out to inspect the place. He found that a large part of forest had been cut down. Only a very narrow part of old forest area remained, and the elephants lived there. Elephants need large spaces to live in, and they also need a lot of food. The people had taken these away. How would you feel if your home was taken away and you didn't have enough to eat? Very bad, of course, said Shadat. It's very bad. Well, the wild elephants kept getting hungrier and hungrier. And they are angry, and they also became angry. A hungry animal is an angry animal. Once they even chased a man down the forest road and broke the wall of house in search of food for their little ones. Not far from the animal there was an old granary where the farmers stored their grain till they could sell it to the merchant. Early one morning, an elephant, clearly the leader of the herd, appeared at the granary. After looking around for a while, it returned to its herd. A little later, two men who were on their way to granary saw the herd move towards the granary in almost a military order. The alarmed men speedily climbed a banyan tree and hid themselves among its leafy branches. They watched the elephants. The walls of the granary were thick and strong, but the elephants seemed to have a plan. One of the largest elephants of the herd then took a position at one corner of the granary and started hitting its wall. When it was tired, another took over its place, and till several bricks gave away, an opening is created, and soon it was made larger and larger. When they had made a hole big enough for an elephant to enter, the herd divided itself into groups for 3 or 4, since only few could find room inside. That's why. Then, one by one, each group entered the granary to feast on the paddy. When one group had eaten all, its place was taken by another. One of the elephants stood guard at a distance. After all the elephants had feasted to their fullest, the guard trumpeted loudly,
and the herd rushed off into the forest. Wow, Grandma, said Seher, that's just like an army raid. Yes, Grandma, as I told you before, elephants are very intelligent creatures. Also remember that they are very caring, protective and completely unselfish animals. Okay, and it is the story by Sachinanda Sarkar. So nice. Elephant feast. हाथियों की दावत. छोटे बच्चे अपनी दादी माँ के बिल्कुल स्नगल्ड हो जाते हैं. स्नगल्ड मतलब कम क्लोजर, पास में आ जाना, और कहते हैं इट वॉज स्टोरी टाइम, ये तो कहानी सुनाने का टाइम है. ग्रैंड माँ के पास बहुत अच्छी अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ होती है. तो सहर कहती है, दादी माँ हमें वो फॉरेस्ट वाली स्टोरी सुनाओ ना. तभी शदाद कहता है, नहीं हमको तो टाइगर वाली स्टोरी सुनाओ. लेकिन फिर वापस दोनों बच्चे कहते हैं, नहीं नहीं आज वो एलिफेंट वाली स्टोरी सुनाओ, जिसमें न्यू बॉर्न एलिफेंट का छोटा बच्चा था, वो उसकी वजह से आप गिर गई थी. या फिर वो वाली स्टोरी सुनाओ जिसने ना एक बार एक एलिफेंट ने अपनी बैक को रब किया आपके घर की दीवार पर, और आपने सोचा कि वो एक अर्थक्वेक है, एक भूकंप है, और आप बहुत डर गई थी ना दादी माँ, वो कहानी सुनाओ. लेकिन नहीं, दादी माँ सुनाती है एक अलग कहानी, जिसमें वो कहती है जब तुम्हारे दादाजी फॉरेस्ट ऑफिसर थे तब उनको एक बार सिलीगुड़ी नाम की जगह पर भेजा गया, जहाँ पर एक फॉरेस्ट था. ये जगह हिमालयाज़ के बिल्कुल पास में है, जहाँ पे हिमालय माउंटेन जो वो ख़त्म होती है ना, वहाँ पर है. तो उस जगह को डोर्स कहा जाता था. इसका मतलब है हिमालय पर जाने का डोर, रास्ता, दरवाज़ा. ही वेंट सेट देयर, वो वहाँ पर गए ताकि उनको पता चल जाए कि लोग एलिफेंट मैनस किसको कहते हैं. एलिफेंट मैनस मतलब हाथियों से खतरा, मैनस का मतलब होता है खतरा. लेकिन कुछ देखा कि कुछ एलिफेंट्स जो है राइस की फील्ड को खा रहे हैं, उसको पूरा का पूरा ख़त्म कर रहे हैं. तभी नाइट गार्ड ने उनको डराने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं डरे. तब इंस्पेक्ट करने गए दादाजी, और उन्होंने देखा, चेक करने गए कि बहुत सारा जो जंगल है, पेड़, वो काट दिए गए हैं, और वो ही जो जगह थी ना, वो वहाँ पर एलिफेंट्स रहते थे. तो अब दादी माँ पूछती है, तुम्हें कैसा लगेगा अगर कोई आपकी तुम्हारे रहने की जगह को ख़त्म कर दे, है ना, तुम्हारा घर ख़राब कर दे. वेल द वाइल्ड एलिफेंट्स केप्ट गेटिंग हंग. लेकिन बच्चे कहते हैं, नहीं दादी माँ हमें तो बहुत बुरा लगेगा, इट्स वेरी बैड. दादी कहती है इसी वजह से जो एलिफेंट से उनको खाना नहीं मिलता, तो वो बहुत हंग्री हो गए थे, बहुत गुस्से में आ गए थे. और एन हंग्री एनिमल इज़ एंग्री. जब भूखा होता है तो जानवर को बहुत गुस्सा आता है. और एक दिन तो उन्होंने एक आदमी का पीछा किया, चेस किया उसको, और उसके काफ़ी अंदर तक उस व्यक्ति का बहुत दूर तक उन्होंने पीछा किया था एलिफेंट्स ने, और वो आदमी बहुत डर गया. और एक दिन क्या हुआ कि एलिफेंट्स को ग्रैनरी के बारे में पता चल गया. ग्रैनरी क्या होती है? एक ऐसी प्लेस जहाँ पे फार्मर अपनी ग्रेन को स्टोर करता है. ठीक है, तो एलिफेंट्स ने क्या किया, उसने एक एलिफेंट जो उसका लीडर था ग्रुप का, उसने पहले इंस्पेक्ट किया. ठीक है, कुछ देर बाद उन दो लोगों ने देखा, जो गार्ड्स थे उस ग्रैनरी के, उन्होंने देखा कि एलिफेंट्स एक मिलिट्री में ऑर्डर में, एक बहुत अच्छे से, जैसे मिलिट्री परेड करती है ना, बिल्कुल उसी ऑर्डर में सारे जो एलिफेंट्स हैं वो ग्रैनरी की तरफ लाइन बना के जा रहे थे, जैसे आप लोग प्रेयर में लाइंड अप होते हैं ना, वैसे. ठीक है, और वो जो दोनों आदमी थे जो उनको देख रहे थे ना, वो दोनों एक बैनियन, एक बरगद के पेड़ के ऊपर चढ़ के बैठ गए, और वो देखते रहे कि एलिफेंट्स क्या करते हैं. तो क्या हुआ फिर उसके बाद, एक एलिफेंट जो बहुत स्ट्रॉन्ग था, उसने दीवार को, ग्रैनरी की दीवार को मारना शुरू कर दिया, अपने सर से हिट करना शुरू कर दिया. जब वो थक जाता तो उसकी प्लेस, उस एलिफेंट ने दीवार को हिट करना शुरू किया. जब एक एलिफेंट थक जाता तो उसकी प्लेस दूसरा एलिफेंट ले लेता. और जब इतनी बड़ी जगह बना ली उन्होंने, इतना बड़ा होल कर लिया कि एक एलिफेंट उसमें से निकल सके, अंदर घुस सके, तो क्या किया उन्होंने, 1 बाय 1 ग्रुप अंदर जाके और फीस्ट करना शुरू कर दिया, खाना खाना शुरू कर दिया. वो जो पैडी थी ना, उसमें एक पैडी थी, पैडी राइस फील्ड्स थी वहाँ पे, वो उन्होंने खाना शुरू कर दिया. राइस की जो स्टोर्ड राइस होती है ना, वो उन्होंने खाना शुरू कर दिया. लेकिन उस ग्रैनरी के अंदर ज़्यादा एलिफेंट्स नहीं घुस सकते थे, तो उन्होंने, एलिफेंट्स ने अपने आप को ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया.
ठीक है। जब एक ग्रुप में मान लेते हैं हम कि 4-5 एलिफेंट्स होंगे, वो जब अच्छे से पेट भर के उन्होंने फीस्ट कर लिया, अपनी खाना खा लिया, तो उनकी जगह दूसरा एलिफेंट ले लेता। और एक एलिफेंट जो था वो उनका गार्ड था, वो दूर से नज़र रख रहा था कि बस जैसे सब अपना फीस्ट कर ले तो सब फिर वापस निकल जाए, ठीक है। उसने ट्रम्पेट किया, ट्रम्पेट मतलब सूंड से आवाज़ निकालना, और सारे एलिफेंट्स की फीस्ट हो गई। अब दादी माँ को सहर कहती है, ये तो बिल्कुल आर्मी की रेड जैसा लग रहा था, रेड हो जाती है ना, वैसा लग रहा था। रेड क्या होती है? एक अटैक होता है, सरप्राइज्ड,